Hello everyone, welcome to the Nerd Junction, a channel where knowledge meets fun. Today we are beginning with Sociology Optional, Paper 1, Unit 2, Parts C and E. These two parts will be covered together in one video because they are very interconnected. Let us first dive into the UPSC syllabus. We are dealing with Paper 1, Fundamentals of Sociology. We are already done with Unit 1, Sociology the Discipline. And today we'll be done with Unit 2, Sociology as Science. Right now we are starting with Part C, Positivism and its Critique, and Part E, Non-Positivist Methodologies. Let me show you your handout. This handout is available on the Telegram channel for download, the link to which has been provided in the description below as usual. Let us start. Considering that this is a dull topic, I didn't want to bore you. So I thought I'll use the story of Three Idiots to make it a little more interesting. Now, imagine you're watching this hilarious movie. You must have watched it, right? Three Idiots to sabne dekhi hogi. Now, positivism is an approach to social research that sounds as complicated as one of the formulas Rancho scribbles on the chalkboard. It basically means you are using scientific methods, you are applying them when you are studying society. You are applying these principles like you apply them to the natural sciences. Just like Rancho and his friends used unique methods to solve problems, positivism focuses on gathering factual and objective information about society through systematic research. Confusion हो रहा होगा? कोई बात नहीं. Let's break it down. What are the key features of positivism? पहला है empirical observation. अब यहाँ पर think of वीरू सहस्त्र बुद्धि, वायरस जिसको बोलते थे, the strict college principal in Three Idiots, who always wanted evidence for everything. Positivism भी emphasize करता है on empirical observation, which means collecting data and measuring social phenomena in a scientific way. Okay, so evidence and observation. We did this in the last class also. Right? The next part is objectivity. In positivism, researchers aim to be as neutral as Chatur. Silencer याद है? बस उसके जितना ही neutral. Eliminating any personal biases or opinions. They strive for objectivity and impartiality. ठीक है? Objective और impartial. Basically, objectivity का मतलब क्या हुआ? You are not eliminating actually, you are minimizing. Focus on this word, not eliminate but minimizing. Okay, you are minimizing personal bias. ठीक है, अपनी पर्सनल बायस से सोशल रिसर्च इम्पैक्ट नहीं हो, ये कोशिश करता है पॉजिटिविटी. ठीक है, पॉजिटिविटी का एक फीचर, पॉजिटिविज्म का एक फीचर है ऑब्जेक्टिविटी. नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव अप्रोच. Positivism focuses on numbers and statistics. Just like the formulas that make your head spin. Researchers क्या करते हैं? They use numerical data and statistical analysis to identify patterns, correlations and even causal relationships. Causal relationship का मतलब क्या होता है? Causal relationship is cause and effect relationship. ठीक है? Cause और ये effect. अगर ये हुआ है तो इसका कोई कॉज होगा, और कोई कॉज है यहाँ पर तो उसका कोई इफेक्ट होगा. तो ये सर्कुलर रिलेशनशिप को फिगर आउट करने में भी यूज़ करते हैं पॉजिटिविज्म क्वांटिटेटिव अप्रोच को. एंड देन लॉस एंड जनरलाइजेशंस. Positivists want to discover universal laws and generalizations that can explain social phenomena. It is like finding a formula that can predict human behavior and social processes. ये बिल्कुल हमको, if you want to see an example, this reminds us of how Rancho challenged the conventional education system and aimed to bring about a positivist change in the society. So in a nutshell, positivism is like applying scientific methods to understand society, just as Rancho and his friends used their own unique methods to solve problems at college. Now, there are certain critiques of positivism. The first critique is the interpretive critiques or the hermeneutics. It has been proposed by Weber. Well, the first point of contention is the nature of reality. Well, Weber claims that positivism
ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं सोशल रियलिटी को. दे अज्यूम दैट एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड एंड क्वांटिफाई. भाई अगर वायरस बोल रहा है कि सक्सेस सिर्फ सोली डिटरमाइन हो सकती है तुम्हारी एकेडमिक अचीवमेंट्स, तुम्हारे एग्जाम स्कोर से, तो तुम ओवरलुक कर रहे हो ना बच्चे की कैपेबिलिटीज़ को, उनके इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस और मोटिवेशंस को. तो वो बस इसी तरीके से ही समझाना चाह रहा है कि जो पॉजिटिविज्म है वो भी ओवर सिंप्लीफाई कर देता है सोशल रियलिटी को. सोशल रियलिटी इज़ वे मोर कॉम्प्लेक्स. नाउ research focus. Positivists often explain and predict social phenomena by identifying general patterns and regularities. ये एक प्रॉब्लम है because they rely heavily on quantitative methods and statistical analysis. अब जैसे साइलेंसर है, वो ओनली फोकस करता था ऑन मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स विदाउट ट्रूली अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मैटर. तो पॉजिटिविस्ट भी ट्रूली तो समझ ही नहीं पाएंगे सब्जेक्ट मैटर को, क्योंकि उनका फोकस तो कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ ढूंढने में कि क्या रिसर्च क्या जनरल पैटर्न्स हैं, क्या रेगुलरिटीज़ हैं, क्या डेटा है, बस इसी को ढूंढने में लगे रहते हैं. उनका रिसर्च फोकस ये है. दे विल नेवर अंडरस्टैंड ट्रूली द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ फिनोमेना, ऑफ अ सोशल फिनोमेना. देन द रोल ऑफ द रिसर्चर. In positivism, researchers are expected to be objective and detached from the research process. ये एक प्रॉब्लम है. क्यों? क्योंकि you are saying that I have to stay detached. But personal biases and values will come anyway. Also, personal bias and values are seen as potential errors and minimized through standardized methods in the case of positivism. Right? जैसे कि राजू रस्तोगी, he tried to hide his fears and struggles to conform to societal expectations, maintaining a strong front. If you keep on hiding something, you will not be addressing the main problem, right? तो जो रोल ऑफ द रिसर्चर है वो क्या होता है, दैट यू हैव टू बी completely detached, which is completely impossible. इससे बेटर है you address what your biases are and you try to minimize them instead of trying to eliminate them, right? That is more practical. Then understanding of meaning. पॉजिटिविस्ट प्रायोरिटाइज करते हैं ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स को और कॉजल रिलेशनशिप्स को, एंड दे ऑफन ओवरलुक द सब्जेक्टिव मीनिंग इंडिविजुअल्स अटैच टू देयर एक्शंस एंड सोशल इंटरेक्शंस. जैसे कि फरहान कुरैशी का पैशन था फोटोग्राफी का, ठीक है, वो डिसमिस कर देते थे बाकी लोग, उसके पापा, उसके जो क्या बोलते हैं टीचर्स थे. दे डिडंट थिंक दैट दिस इज समथिंग यू शुड परस्यू, राइट? बट पॉजिटिविज्म कैन मिस दिस रिच सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस. एन इंटरप्रेटिविस्ट विल रियलाइज कि उसका सही इस्तेमाल हो सकता है वहाँ पे. मे बी इफ ही यूजेस हिज टैलेंट समवेयर एल्स ही विल डू वे बेटर, बिकॉज द इंटरप्रेटिविस्ट विल फोकस ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एज वेल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनरलाइजेबिलिटी. अब इनकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों बोल रहे हैं कि जनरलाइजेबिलिटी प्रॉब्लम है? इंटरप्रेटिविस्ट लाइक वेबर आर कंप्लेनिंग दैट जनरलाइजेबिलिटी इनका जो है वो इशू है, बिकॉज positivists, what are they doing? They're applying findings from a specific study to a broader context. तुम्हारा डेटा सेट ये था और तुमने इसको इतने बड़ी जगह पे अप्लाई कर दी कि यहाँ पर ये ट्रू है तो यहाँ पर भी ये ट्रू है, assuming that the same patterns and laws apply universally. ये हमको रिमाइंड करता है ऑफ वीरू सहस्त्र बुद्धि, जो एक्सपेक्ट करता है हर स्टूडेंट टू फॉलो अ प्री डिटरमाइंड पाथ टू सक्सेस, जबकि मेरा पाथ टू सक्सेस ऐसा हो सकता है और किसी और का पाथ टू सक्सेस ऐसा हो सकता है. Right? Now, when we are done with this is the first critique. The second critique is posed by the Chicago School of Sociology. It is called qualitative neglect. The Chicago School of Sociology, represented in the movie by Rancho's unique approach, highlights the value of qualitative methods for understanding subjective experiences and capturing the richness of social interactions. ठीक है? It will explore the social dynamics and meanings of city spaces. अब इसके अंदर क्या था, what they did, the Chicago School of Sociology, they said कि जो city spaces है ना, उनको मैं सिर्फ quantitative data से नहीं समझ सकती. The social phenomena happening there, the complex urban phenomena, couldn't just be understood by using data and stats. I needed a more holistic understanding using subjective experiences so that I can capture the rich social interactions taking place. So that was the qualitative neglect critique. This is a value added point. ये हर जगह नहीं मिलेगा. Next, the social constructivist critique. अब ये critique क्या है? Well, critiques of positivism argue that
positivism fails to recognize the influence of power dynamics, social context, and cultural values of on knowledge production. वो कंटेंड करते हैं कि जो रियलिटी होती है ना वो ऑब्जेक्टिव नहीं होती है. ऐसा नहीं होता कि जो रियलिटी है वो प्री एग्जिस्टिंग है और वो ऑब्जेक्टिव ही है, ठीक है. बट रियलिटी जो होती है वो शेप्ड होती है बाय सोशल प्रोसेसेस एंड इंटरेक्शंस. अब तुमने ये नोटिस किया होगा, ये जो भी बातें कर रहे हैं क्वालिटेटिव नेग्लेक्ट वाली, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट वाली या वैल्यू न्यूट्रलिटी वाली, ऑल ऑफ देम आर काइंड ऑफ टॉकिंग अबाउट द इंटरप्रेटिव क्रिटिक ओनली. तो मैं थोड़ा बहुत बोल सकती हूँ कि हाँ, लाइक दिस इज द ब्रॉडर ब्रांच और इसी के काइंड ऑफ ये सब ब्रांचेस हैं, राइट. पर इनको अलग अलग पॉइंट्स की तरह लिख कर आना जब ज़रूरत पड़े. एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट, अगर पोला है कहीं एक शॉर्ट नोट एंड इंटरप्रेटिविज्म, यू कैन मेंशन, पहले तो यही मेंशन करो. अगर फिर भी नहीं कुछ समझ में आ रहा तो यू कैन मेंशन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्रिटिक, यू कैन मेंशन द क्वालिटेटिव नेग्लेक्ट क्रिटिक, ठीक है. यू कैन मेंशन दीज थिंग्स अंडर दिस. ओके, नाउ द सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्रिटिक कर रहे थे, राइट. अब इन्होंने यही बोला कि जो रियलिटी होती है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होती और प्री एग्जिस्टिंग नहीं होती, बट रादर इट इज शेप्ड बाय सोशल प्रोसेसेस एंड इंटरेक्शंस. दिस इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स ऑल्सो. ये एक एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, ठीक है. यू कैन रीड अबाउट देम. दिस इज अ वैल्यू एडेड मटेरियल. अगर इनको लिखना है तो तुम्हें, यू कैन मेंशन देम एंड in the comment section you will tell me what these experiments were and how is it acting as a critique. मैं अभी भी बता सकती हूँ and I'll tell you about this in the next class. अगर नीचे लोग comment में बताएंगे और मुझे लगा कि इसे समझाने की ज़रूरत है, but this is your homework. You will tell me in the comment section what the Hawthorne experiments were, okay, and how are they a critique of positivism. How do they challenge positivism. इसी के अंदर मैंने सोशल कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट क्रिटिक के अंदर ही फेमिनिस्ट क्रिटिक मेंशन किया, ठीक है. अब देखो, मैंने बोला है ना कि इट इज़ फेलिंग टू रिकग्नाइज इन्फ्लुएंस ऑफ पावर डायनेमिक्स, सोशल कॉन्टेक्स्ट और कल्चरल वैल्यूज, राइट. वेल, फेमिनिस्ट ऑल्सो आर्ग्यू, फेमिनिस्ट से दैट पॉजिटिविज्म का लिमिटेशन होता है कि वो जेंडर इनक्वालिटीज़ को कैप्चर नहीं करता, वो पावर डायनेमिक्स को कैप्चर नहीं करता. इट इज़ नॉट कैप्चरिंग द लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ वेमेन. फेमिनिस्ट आर्ग्यू फॉर द इंक्लूजन ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, intersectionality and qualitative approaches. Just like how Pia, जो रांचो का लव इंटरेस्ट था मूवी में, she defies social expectations and fights for her dreams. Feminist critiques challenge the narrow perspectives of positivism and advocate for a more inclusive and diverse understanding of the social phenomena. ठीक है. अब क्या, अब एक और जो चैलेंज है वो है वैल्यू न्यूट्रलिटी चैलेंज. वैल्यू न्यूट्रलिटी होता क्या है, वैल्यू न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल मतलब क्या हुआ और वैल्यू मतलब क्या हुआ, ये जो वर्ड है विल बी डीलिंग इन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है. कि व्हाट डज वैल्यू न्यूट्रलिटी रियली मीन्स, विल बी डीलिंग विद दिस थिंग इन द नेक्स्ट पार्ट, ओके. लेकिन ये भी एक चैलेंज है. इफ़ यू कैन रिसर्च अपॉन दिस अ लिटिल एंड टेल मी व्हाट डज द वर्ड वैल्यू मीन एंड व्हाट डज द वर्ड वैल्यू न्यूट्रल मीन्स. और एक और चीज़, अगर तुम, ये तो नेक्स्ट वीडियो में तो तुम देखोगे ही, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू न्यूट्रल वर्सेस ऑब्जेक्टिव. क्या ये दोनों चीज़ें सेम होती है या अलग होती है. अगर कोई चीज़ वैल्यू न्यूट्रल है तो क्या वो ऑब्जेक्टिव हुई, एंड वाइस वर्सा, डज दैट होल्ड ट्रू, या फिर ये दोनों चीज़ें एकदम ही अलग हैं और एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है. यू लेट मी नो अबाउट दिस इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है. दिस इज ऑल्सो योर. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अनदर क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज्म और वो है फिनोमिनोलॉजी. अब जो आगे की दो क्रिटिक्स हैं, फिनोमिनोलॉजी एंड एथनोमेथोडोलॉजी, इनके लिए मैंने एक स्टोरी बना दी है. अभी असली में 3 इडियट्स में नहीं हुआ है, पर मैंने उनके कैरेक्टर्स यूज़ कर लिए हैं जस्ट टू कीप यू गाइज एंगेज्ड. सो जस्ट बेयर विद मी. और ये टॉपिक्स बहुत ईजी हैं, बहुत जल्दी से समझ आ जाएंगे. अब जो फिनोमिनोलॉजी है उसका फाउंडर है, पहले तो ये याद रख लो, he is Edmund Husserl. I don't know how you pronounce it better. If you can do it, do it. Anyway, once upon a time, there were 3 friends. अब वो 3 फ्रेंड्स का नाम तो तुम जानते ही हो, राजू, फरहान एंड रांचो. They were students at this engineering college, right? अब राजू क्या, he was a very observant person. He loved understanding the life world and subjective experiences of his friends. ठीक है. उसको बहुत, वो ऑब्जर्वेंट था, उसकी इच्छा थी कि वो समझे क्या उसके दोस्तों की लाइफ वर्ल्ड और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं.
he always tried to figure out what influenced their actions and interactions. एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो एक फन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेगा टू अंडरस्टैंड देयर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. राजू ने अपने सारे दोस्तों को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, ठीक है, और उनको एक एक स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा दिया. ही आस्क्ड देम टू डिस्क्राइब देयर एक्सपीरियंस ऑफ ईटिंग द पिज्ज़ा विदाउट यूजिंग देयर सेंस ऑफ साइट. देख नहीं सकते, बस स्वाद करके बताओ कैसे लग रहा है, क्या डिलाइट फील हो रहा है, कैसा लग रहा है. राजू ने नोटिस किया कि उनके जो डिस्क्रिप्शंस थे वो यूनिक थे और डिफरेंट थे, इवन दो दे वर ऑल ईटिंग द सेम पिज्ज़ा. इससे उसको रियलाइज़ हुआ कि जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस होते हैं और मीनिंग्स होते हैं वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन हाउ इंडिविजुअल्स परसीव एंड इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड, राइट. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं. रांचो जो है वो भी एक क्यूरियस सा सोल है ना. क्यूरियोसिटी तो उसके अंदर बहुत है. He was particularly interested in the concept of phenomenology himself. So, one day, while he was studying for an exam, he noticed that each person in the library had a different approach to studying. कुछ लोग एकदम साइलेंस में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बैकग्राउंड नॉइस चाहिए होती है. रांचो ने रियलाइज़ किया कि जो डिफरेंसेस थे they were influenced by their individual life worlds and the social context that they existed in. ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और मीनिंग जो थे दे वर बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल लाइफ वर्ल्ड्स एंड द सोशल कॉन्टेक्स्ट दैट दे एग्जिस्टेड इन. टू फर्दर अंडरस्टैंड दिस, रांचो ने क्या किया, एक हिलारियस एक्सपेरिमेंट रखा. उसने ही एंटर्ड द लाइब्रेरी वेयरिंग अ चिकन कॉस्ट्यूम एंड स्टार्टेड क्लकिंग लाउडली, पक पक पकाओ. द रिएक्शंस ऑफ द स्टूडेंट्स वेरीड, with some laughing and some getting annoyed and others ignoring him completely. इस एक्सपेरिमेंट के साथ रांचो wanted to show how individuals share their understanding, values and norms. ठीक है, कैसे इंडिविजुअल के shared understandings, values and norms shape their interactions. He believed that context and historical situatedness were essential factors in understanding social phenomena. अब तुमको ये अजीब सा नहीं लगे इसलिए मैं बता देती हूँ चीज़, अदरवाइज दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड नाउ. अंडरस्टैंडिंग द लाइफ वर्ल्ड एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल्स दैट शेप ह्यूमन एक्शंस एंड इंटरैक्शंस. ये शूट्स ने बोला, ये हमको पता भी अब क्या है, इसका मतलब समझा चुकी हूँ मैं एक स्टोरी के थ्रू. सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड मीनिंग. फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस, फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस पे फोकस करने को बोला इसने कि आप देखो कि उस इंसान को कैसा फील हो रहा होगा, राइट. इंस्टेड ऑफ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव जो कि अपन पॉजिटिविज्म में देखते हैं, वो किसको प्रायोरिटाइज करता है, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स को और जनरलाइजेबल पैटर्न्स को. लेकिन ऐसा नहीं होता. एवरीबडी while they were eating the same slice of pizza, they gave different interpretations of the same thing happening to each of them, right? तो वही चीज़, life world, everyday lived experiences and understanding the social context within which individuals exist. ये भी हम रांचो वाले एग्जाम्पल से डिस्कस कर चुके हैं. एंड इंटरसब्जेक्टिविटी, which is individuals share common understandings, values and norms that influence their interactions. Easy peasy. Challenges, अब मैं बता रही हूँ कि इसने इस पॉजिटिविज्म को कैसे चैलेंज करा है. यहाँ पर जो भी लिखा है ना, इट इज़ दिस थिंग चैलेंजिंग पॉजिटिविज्म. ठीक है, अनलाइक पॉजिटिविज्म इसके अंदर है चैलेंजेस पॉजिटिविस्ट अजम्पशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी. क्योंकि पॉजिटिविज्म क्या बोलता था कि एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट करती है. याद है वीरू सहस्त्र बुद्धि कि सब लोगों का सक्सेस का फॉर्मूला सेम हो जाएगा. ऐसा तो नहीं होता है ना. तो इसी चीज़ को इसने चैलेंज करा कि लाइफ वर्ल्ड डिफरेंट होता है, इंटरसब्जेक्टिविटी होती है, तो तुम ये कैसे बोल सकते हो. देन क्वालिटेटिव एंड इंटरप्रेटिव रिसर्च, रिफ्लेक्सिविटी एंड रिसर्चर्स प्रेजेंस. रिसर्चर्स क्या होते हैं? एक्टिव पार्टिसिपेंट्स एंगेजिंग इन डायलॉग्स विद द पार्टिसिपेंट्स, है ना. एक्नॉलेजिंग द पोटेंशियल इन्फ्लुएंसेस ऑफ देयर ओन बायसेस एंड पर्सपेक्टिव्स. अब इसके अंदर क्या होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिनोमेनोलॉजी, दे आर एक्नॉलेजिंग रिफ्लेक्सिविटी. दे वो बोल रहे हैं कि हाँ हम रिसर्चर प्रेजेंट होंगे, हमारे कुछ पर्सनल बायस होंगे, हम इन्हें रिकग्नाइज कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू कीप इन माइंड कि ये चीज़ हमारे जजमेंट को या हमारे एनालिसिस को इम्पैक्ट नहीं करे. लेकिन पॉजिटिविज्म क्या बोलता था कि इट्स टाइप फॉर एन ऑब्जेक्टिव एंड डिटैच स्टांस. वो ये बोलता था कि मिनिमाइज कर दो रिसर्चर का इन्फ्लुएंस ऑन रिसर्च प्रोसेस. वाइल दिस टॉक्ड अबाउट टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन सो दैट यू नो व्हाट इज इम्पैक्टिंग योर डिसीजन मेकिंग. एंड ऐसा नहीं कर रहे हो तुम लोग कि यू आर मेकिंग अ डिसीजन एंड यू डोंट इवन नो दैट द बायस इज क्रीपिंग इन. क्योंकि बायस तो क्रीप इन हो गई,
इट इज़ बेटर टू एक्नॉलेज इट रादर देन टू स्टे क्वाइट एंड से कि नहीं मैं तो डिटैच ही कर दूंगा इस चीज़ से कि पर्सनल बायस आ ही नहीं सकता, इसको एक पॉजिटिव साइंस की तरह पढ़ा जा सकता है. सोसाइटी को पॉजिटिव साइंस की तरह पढ़ना बड़ा मुश्किल है. यही इस चीज़ को चैलेंज कर रहा है. देन एम्फेसिस ऑन कॉन्टेक्स्ट एंड हिस्टोरिकल सिचुएटेडनेस, ये भी मैंने अभी रैंचो वाले एग्जाम्पल से डिस्कस कर लिया. सो वी आर डन विद दिस पोर्शन. नाउ दीज आर सम थिंकर्स. ठीक है, अब ये थिंकर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डेटा है जो कि मैंने एक्स्ट्रा ही दिया है. If you want to remember this, it's good because you should remember at least a few thinkers when it comes to phenomenology and ethnomethodology. तो इनको पढ़ लो, इनकी basic ideas को पढ़ लो. If there is an issue in understanding this, do comment in the comment section below and I'll take the next class के starting के 5 minutes to explain this. वैसे बहुत easy है, relatively easy है after we have understood this. Anyway, यहाँ पर देखो मैंने हल्का सा एक difference लिख दिया है क्योंकि students confuse हो जाते हैं interpretivism, फिनोमिनोलॉजी और सिंबॉलिक इंटरेक्शन के बीच में. तो ये इंटरप्रेटिविज्म की सब ब्रांचेस हैं एक तरीके से, फिनोमिनोलॉजी और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, और इसके बीच का डिफरेंस लिखा हुआ है जो कि तुम पढ़ोगे समझ में आ जाएगा. दिस नथिंग न्यू. नाउ लेट्स मूव टू एथनोमेथोडोलॉजी. अब इसके अंदर हमारे हीरो कौन है? हरोल्ड गारफिंकल. ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस टेक्निक. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज्म. अब एक चीज़ चलो इसके बाद में बताऊंगी. लेट्स कंप्लीट दिस. दिस इज ऑल्सो क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज्म. अब इसके अंदर टू अंडरस्टैंड दिस आई मेड अप अनदर स्टोरी. वेल दिस स्टोरी इज कॉल्ड फरहान्स डिलेमा. ठीक है, अब फरहान वॉज द मोर प्रैक्टिकल एंड डाउन टू अर्थ फ्रेंड एंड ही वॉज इंट्रीग्ड बाय एथनोमेथोडोलॉजी. ही वॉज फैसिनेटेड बाय द स्टडी ऑफ एवरीडे सोशल इंटरेक्शंस एंड हाउ पीपल मेड सेंस ऑफ दिस सोशल वर्ल्ड. Right? One day, Farhan found himself in a funny situation, जहाँ पर he participated in a ethnomethodological experiment. While walking on the street, Farhan encountered a stranger. उसे एक stranger मिला, who was holding a sign that said free hugs. Farhan ने realize नहीं किया कि वो experiment है and eagerly went in for a hug. However, the stranger unexpectedly refused to hug him. उसने मना कर दिया, मैं तो hug नहीं कर रहा. फरहान कंफ्यूज था एंड फेल्ट अ बिट एम्बैरेस्ड. लेटर उसको समझ में आया कि स्ट्रेंजर वाज कंडक्टिंग अ ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट टू स्टडी पीपल्स रिएक्शन टू अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर. नाउ थ्रू दिस एक्सपीरियंस फरहान अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्सिविटी एंड हाउ सोशल साइंटिस्ट कैन नॉट सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर वैल्यूज इन सोशल कॉन्टेक्स्ट. उसको ये भी रियलाइज हुआ कि द सोशल रियलिटी वी परसीव इज नॉट ऑब्जेक्टिव एंड फिक्स्ड बट रादर कंस्ट्रक्टेड थ्रू आवर इंटरेक्शंस विद अदर्स. उसका जो इंटरेक्शन था उसके साथ उसको तो लगा, उसने लिखा है फ्री हग्स, और अगर हम ऑब्जेक्टिव है कंप्लीटली तो उसे फ्री हग मिल जाना चाहिए था. बट ह्यूमन बीइंग्स आर कॉम्प्लेक्स. उसने बोला नहीं, दिस वाज तो जस्ट अ सोशल एक्सपेरिमेंट एंड दिस वाज स्ट्रेंज बिहेवियर एंड ही फेल्ट एम्बैरेस्ड एंड द गाय डिडंट हग हिम. डू यू गेट इट? नाउ लेट्स जस्ट रीड इट सो दैट यू अंडरस्टैंड. वेल, व्हाट डज एथनोमेथोडोलॉजी डू? इट विल फोकस ऑन द स्टडी ऑफ एवरीडे सोशल इंटरेक्शंस and how individuals make sense of their social world. अब सोचो, किसी ने मुझे फ्री हग्स वाला जो बोर्ड देखा था, मैंने किसी को हग किया और किसने मुझे कर दिया होता. बट देन सम अदर पर्सन, उसने कहीं जैसे फरहान जैसे को एम्बैरेसमेंट होता, अगली बार वो ऐसा फ्री हग्स वाला बोर्ड देखेगा तो आई विल जस्ट गो एंड हग दैट पर्सन, वाइल फरहान विल नॉट इवन स्टेप फॉरवर्ड. उसको पता है ये तो मजाक कर रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं मेरे साथ. तो माई इंटरैक्शंस एंड हाउ आई एम मेकिंग सेंस ऑफ माई सोशल वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन my social interactions, right? And it will be subjective. तो यही बोला है एथनोमेथोडोलॉजी ने. It rejected value neutrality, जो कि पॉजिटिविज्म बोलता है कि वैल्यू न्यूट्रल होगा. ठीक है, वैल्यू न्यूट्रल क्या होता है कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को हम और पर्सनल बायस को हम एलिमिनेट करेंगे. लेकिन ये बोला कि नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. यू कैन नॉट, ही रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिटी. यू कैन नॉट बी वैल्यू न्यूट्रल. ही फोकस्ड ऑन द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है और ऑब्जेक्टिव नहीं होती है. ये हम देख चुके हैं. सेम तरीके के इसके अंदर भी कंटेंशन है अगेंस्ट पॉजिटिविज्म. ही एम्फेसाइजेस ऑन एवरीडे मंडेन इंटरेक्शंस. जबकि जो एक क्या बोलते हैं पॉजिटिविज्म की बात करें तो इट विल नॉट रियली फोकस ऑन एवरीडे मंडेन इंटरेक्शंस बट इट विल बी फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक इंटरेक्शन. उसका स्टडी करेगा एक सिस्टमैटिक मैनर में. लेकिन ये बोलेगा नहीं, रोजाना का देखो आसपास लोग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसकी जानकारी लेकर यू विल फिगर दिस आउट. एथनोमेथोडोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट्स. ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट्स में पहले करा चुकी हूँ, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट. यू नीड टू रिकॉल एंड यू नीड टू ऑल्सो कमेंट दिस डाउन बिलो so that I know that you listen properly. What breaching experiments are.
फिर मेथडोलॉजिकल रिफ्लेक्सिविटी. अब रिफ्लेक्सिविटी का मतलब मैं अभी बता चुकी हूँ, दैट यू रिकग्नाइज योर बायस इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं कोई बायस ही नहीं है, आई एम रिकग्नाइजिंग कि हाँ ये बायस है, दैट आई ब्रिंग दिस बायस. ठीक है. और रिफ्लेक्सिविटी एंड पोजिशनैलिटी विल बी डीलिंग विद दीज टू टर्म्स इन द नेक्स्ट यूनिट इन डिटेल. फिर माइक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. एथनोमेथोडोलॉजी है वो माइक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देता है एक तरीके से. यू गेट इनटू कॉन्वर्जेशंस इन सर्टेन ग्रुप्स, और एक एक जगह का आप एक ऐसे नहीं करते ना कि ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हो. यू स्टडिंग इंटरेक्शंस ऑफ everyday social interactions of different individuals, and you're seeing how different individuals are interpreting the world because of that. तो एक माइक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी देता है ये, राइट. सो वी आर डन विद दिस थिंग. नाउ थिंकर्स देख लेते हैं एक बार. एक है हार्वी सैक्स. ये देते हैं कॉन्वर्जेशन एनालिसिस. वही कि ये कॉन्वर्जेशन का एनालिसिस करना है, एज सिंपल एज दैट. जो बोला है वही चीज़, और यही अगर लिखना है इसके अंदर तो यही सब लिख सकते हो. ठीक है. अदरवाइज यू कैन रीड अप अ लिटिल इफ यू वांट, अदरवाइज इट्स द सेम थिंग. एंड देन आरॉन, ही रोट अ बुक मेथड एंड मेजरमेंट इन सोशियोलॉजी. जिन्होंने बात करी थी यहाँ पर, उन्होंने रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन इंटरप्रेटिव प्रोसेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल ऑर्डर. सो ही रियली टॉक्ड अबाउट एथनोमेथोडोलॉजी हियर. ही टॉक्ड अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस. अब एथनोमेथोडोलॉजी क्या रिलायबल और वैलिड डेटा प्रोवाइड करता है? यस, वो रिलायबल और वैलिड डेटा प्रोवाइड करता है, बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग अस विद नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस. वो रिफ्लेक्सिविटी को भी अकाउंट में ले रहा है. रिफ्लेक्सिविटी क्या है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. और प्लस इट्स प्रोवाइडिंग अस विद रिच क्वालिटेटिव डेटा. तो वी कैन नॉट से इट इज एन अनसाइंटिफिक मेथड एंड इट इज नॉट गिविंग अस रिलायबल एंड वैलिड डेटा, बिकॉज इट इज. ऑल्सो इट इज ऑफ कोर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंस, बिकॉज वॉट इज इट डूइंग? इट इज मेकिंग द फेमिलियर स्ट्रेंज. जो अपन को कॉमन सेंस लगता है कि नहीं ऐसे होता होगा, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट उसी चीज़ को तो तोड़ रहा था कि नहीं देखो ये तुमको लगता है कि ऐसा होता है, लेकिन ये अजम्पशन ऐसे काम नहीं करता है. अगर ऐसे किया तो अपन को पता चला कि असलियत क्या है, लोग असली में क्या सोच रहे हैं. सो इट मेक्स द फेमिलियर स्ट्रेंज. ठीक है. इट इज एनालाइजिंग एथनो मेथड्स एंड इट इज इन्वेस्टिगेटिंग द सोशल ऑर्डर. अब ये सब हो गया. ठीक है. ऑल ऑफ दिस हैपेंड. देन वी डिस्कवर्ड कि अब क्या है, ये दोनों में तो लड़ाई हो गई. पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म की एक तरीके से लड़ाई है. ठीक है. पॉजिटिविस्ट बोलते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, जबकि इंटरप्रेटिविस्ट बोलते हैं कि सोशल रियलिटी है. पॉजिटिविस्ट बोलते हैं कि कंप्लीट डिटैचमेंट रखो. इंटरप्रेटिविस्ट बोलते हैं कि डिटैचमेंट पॉसिबल ही नहीं है. और वो जो 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस थे, प्लस ऑल दीज डिफरेंसेस दैट वी रेड, देयर आर ए लॉट ऑफ डिफरेंसेस. यू कैन राइट अगर इसके बीच में डिफरेंशिएशन भी आ जाए नाउ. ठीक है. तो रिकंसिलिएशन अटेम्प्ट्स के लिए पोस्ट पॉजिटिविज्म आया. ठीक है. उसने बोला मैं तुम्हारा सल्टारा कराता हूँ, झगड़ो मत. इट एक्नॉलेजेस द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रिक्ट पॉजिटिविज्म and integrates both quantitative and qualitative approaches in social research. इसने दोनों को मिक्स कर दिया. इसने बोला दोनों ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि क्वांटिटेटिव होनी चाहिए, ऐसा नहीं है क्वालिटेटिव होनी चाहिए, दोनों का मिक्सचर जरूरी है. इसने भी क्रिटिक करा कि कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है. ठीक है. लेकिन इसने बोला कि इसलिए प्लुरलिटी ऑफ मेथड्स चाहिए इंक्लूडिंग क्वालिटेटिव अप्रोचेस, बट इट डिड नॉट से कि ऑब्जेक्टिविटी ज़रूरी ही नहीं है. इट सेड दैट द कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी का नोशन इज नॉट पॉसिबल. ऑब्जेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड, but we need to supplement it with qualitative approaches as well. ठीक है. फिर ये वही वाले पॉइंट से दोबारा रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि फॉलिबिलिटी एंड टेंटेटिवनेस ऑफ नॉलेज सब्जेक्ट टू रिविजन बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस. जैसे कि अगर कोई नया एविडेंस आ रहा है तो हमको हमारी नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा. ठीक है. वी नीड टू अपडेट आवर नॉलेज. एग्जाम्पल लो, जैसे इसका सपोज करो डार्विन का थ्योरी था ऑफ एवोल्यूशन. ठीक है. इट वॉज अ ब्रेक थ्रू. जो अभी तक सोचते थे उससे डिफरेंट था. ऐसे ही कॉपरनिकन रेवोल्यूशन था. पहले कुछ मानते थे, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी बाद में आई. ठीक है. तो इट्स सेड दैट नॉलेज जो है वो इट्स फॉलिबिलिटी एंड टेंटेटिवनेस, बिकॉज इट्स टेंटेटिव इन नेचर. फिक्स नहीं होती है कि हमेशा ये नॉलेज है तो यही रहेगी. कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं हो सकती है. ठीक है. सो यू नीड टू कीप ऑन लुकिंग एट द सेम थिंग्स ऑन एट डिफरेंट टाइम्स. ओके. रिफ्लेक्सिविटी इन्वॉल्व्स. अब रिफ्लेक्सिविटी क्या है ये भी अपन पढ़ चुके हैं. कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं. थ्योरी लेड इन ऑब्जर्वेशन समझ में आ ही रहा है. नाउ वी आर डन विद दिस टॉपिक. अब इसकी PYQs देख लेते हैं. पहला पॉजिटिविज्म इन इट्स क्रिटिक का देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथडोलॉजीज के. अब तुम ये सोचो कि मैंने तो तुमको नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथडोलॉजीज पढ़ाया ही नहीं, पार्ट ई का क्या हुआ? एक चीज़ बताओ, जब हम क्रिटिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म पढ़ रहे हैं, इज इट नॉट द रीज़न फॉर द राइज ऑफ नॉन पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजीज? और क्या जो हम ये मेथडोलॉजीज पढ़ रहे हैं, फिनोमेनोलॉजी, एथनोमेथडोलॉजी, इंटरप्रेटिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, क्या ये सब नॉन पॉजिटिविस्ट इन नेचर नहीं हो गई?
तो हैव वी कवर्ड दैट टॉपिक इवन दो वी थिंक दैट वी हैवंट? हमने क्या क्रिटिक में इस टॉपिक को कवर नहीं कर लिया? You will understand when you look at the PYQs that we have completely covered this topic. Let's see. Positivism and critique के questions की बात करते हैं. 2022 का question है, what are the shortfalls of positivist philosophy that gave rise to the non-positivist methods of studying social reality? पता है shortfalls of positive philosophy क्या है? लिख देना. How far are sociologists justified in using positivist approach to understand social reality? Pros, cons, limitations, explain with suitable illustrations. इतने सारे thinkers दे दिए, इतने सारे examples दे दिए, you can build up on it. 2020. Phenomenological perspectives in sociology reject many of the assumptions of positivism. Comment. Phenomenological approach, already discussed, same question. 2017. Examine the basic postulates of positivism and post-positivism. Done. Examine ethnomethodological and phenomenological perspective as critique of positivism. Covered. 2014 का देखते हैं. In what way interpretative method is different from positivist approach? मैंने तुम्हें बता दिया इंटरप्रेटिव मेथड के, तो मैंने 5 वेबर के पॉइंट्स बता दिए, प्लस आई हैव टोल्ड यू कि और भी पॉइंट्स जिससे तुम सप्लीमेंट कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि और जो सब ब्रांचेज हैं उसको भी यूज़ कर सकते हो, उनके पॉइंट्स को भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए हेल्प ले सकते हो. सो दिस इज ऑल्सो कवर्ड. 2013 क्रिटिकली एग्जामिंग पॉजिटिविस्टिक अप्रोच इन सोशियोलॉजिकल स्टडीज. कवर्ड. 2012 का क्वेश्चन देखते हैं. राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग कीपिंग सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन व्यू. इंटरप्रेटेटिव सोशियोलॉजी. अब इस पर ईजिली लिख सकते हो. मैंने जो बताया, मैंने हालांकि आई हैव रिटन एवरीथिंग दैट आई हैव रिटन हियर इफ यू हैव नोटिस्ड. मैंने यहाँ पे डिफरेंसेस के पॉइंट्स लिखे हैं, पर क्या ही उसका उल्टा जो है, जो ये जो डिफरेंस के पॉइंट्स हैं, अगर इसको मैं रिवर्स कर दूँ तो क्या वो उसके फीचर्स नहीं हो गए? कैन यू नॉट फाइंड देम आउट ऑन योर ओन? ऑब्वियसली दिस इज अ गाइड कोर्स, तो आई एम नॉट गोइंग टू स्पून फीड यू कम्प्लीटली, बट आई हैव प्रोवाइडेड एवरीथिंग इफ यू जस्ट यूज योर ब्रेन. ठीक है, कहाँ पे थे अपन? ओके, वी आर डन विद दिस 2012 का क्वेश्चन. 2009 का क्वेश्चन है, comment on the reasons why neo-idealists and symbolic interactionists are critical of positivism in sociology. Positivism के क्या criticisms हैं? बस यही तो लिखना है. symbolic interactionists कैसे करते हैं और neo-idealists कैसे करते हैं. ठीक है. 2003 का देखते हैं. highlight the problem of objectivity and value neutrality in social research. क्या है problem of objectivity and value neutrality in social research? This will be done. This will be dealt with in the next chapter also. पर तुम अभी भी लिख सकते हो कि जो positivism के critiques हैं उनको यूज़ कर सकते हो ना, ऑब्जेक्टिविटी और वैल्यू न्यूट्रलिटी को क्रिटिक करने, मतलब बताने में की प्रॉब्लम क्या है इसके साथ. यू कैन एलैबोरेट विद सूटेबल एग्जांपल्स द लिमिटेशंस एसोसिएटेड विद द टूल्स ऑफ मेजरमेंट इन सोशल साइंस रिसर्च. अब ये वाला पार्ट है ना क्वेश्चन का, दिस आई विल बी डीलिंग विद इन द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस रिगार्डिंग पार्ट ई, नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथडोलॉजीज. 22 का क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आर द शॉर्टफॉल्स ऑफ पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी दैट गेव राइज टू द नॉन पॉजिटिव मेथड्स? डन. How does a researcher achieve objectivity in interpretative research? Interpretative research के तुमको लिख देने हैं features. ठीक है, और ये achieve objective, how does it help in achieving objectivity? What objectivity is? As soon as you understand that, वैसे तो basics तो समझ में आ गया होगा, but you will be understanding this in way more detail in the next part. ठीक है, और एक कर कैसे सकते हो वो भी in the next part. 2021 का देखते हैं. एक और क्वेश्चन. डू यू थिंक एथनोमेथोडोलॉजी हेल्प्स अस इन गेटिंग रिलायबल एंड वैलिड डेटा? मैंने पॉइंट डाल के लिख दिया कि हाँ, इट कैन हेल्प अस इन गेटिंग रिलायबल एंड वैलिड डेटा, पर इसकी लिमिटेशंस भी लिखनी है. ठीक है. 2019 का देखते हैं. डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल फिनोमेना एंड एक्सप्लेन इट्स लिमिटेशंस. इजी. ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ एथनोग्राफी इन सोशल रिसर्च. इजी. 2018 का देखते हैं. इन नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथडोलॉजी, इज नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथडोलॉजी साइंटिफिक? अब इसके अंदर तुम्हें दोनों चीज़ बोलनी है कि हाँ साइंटिफिक है भी और साइंटिफिक नहीं भी है. साइंटिफिक क्यों है? क्योंकि अपन ने देखा ना कि रिलायबल और वैलिड डेटा तो दे रही थी. अपन ने एथनोमेथोडोलॉजी के लिए देखा, यू कैन यूज दिस फॉर डिफरेंट क्रिटिक्स जो हमने नॉन पॉजिटिविस्टिक थ्योरीज पढ़ी हैं, उनके अंदर भी बता सकते हो कि कुछ ना कुछ तो वो साइंटिफिक प्रोसीजर फॉलो कर ही रही हैं, बट दे कैन नॉट बी कम्प्लीटली साइंटिफिक ऑफ कोर्स. और वही तो उसका क्रिटिक है कि जो नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथडोलॉजी है वो कम्प्लीटली साइंटिफिक होना भी नहीं चाहती थी. सो यू विल हैव टू मेंशन बोथ द पॉइंट्स. द फोकल पॉइंट ऑफ सोशियोलॉजी रेस्ट ऑन इंटरेक्शन. हाउ डू यू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कॉमन सेंस? कॉमन सेंस के बियॉन्ड कैसे जा रही है सोशियोलॉजी? एज सिंपल एज दैट. 2017 elaborate the main tenets of interpretative perspective in sociology. Easy. Non-positivistic methodology is essential for understanding human behavior. Discuss. Easy. In what way interpretative method is different from positivist approach? Repeat question. 2014 का. And we are done with all PYQs.
एज यूल सी ये जितने भी PYQs है कितना भी घुमा के आ जाए, देर आस्किंग द सेम कॉन्सेप्ट जो कि सारे यहाँ पे कवर्ड हैं. सो गो थ्रू दिस मटीरियल वेरी वेरी केयरफुली. आफ्टर यू आर डन गोइंग थ्रू विद दिस मटीरियल, एड योर ओन नोट्स हियर. मैं जो इतना सारा स्पेस जो यहाँ पे मिल रहा है ना तुमको, यूटिलाइज इट फुली. यहाँ पे भर दो जो अपनी चीज़ें तुमको लिखनी है, जो तुमने एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ा है, जो तुमको एक्स्ट्रा फैक्ट्स पता है, जस्ट फिल देम हियर. एंड दीज आर ऑल द पेजेस यू नीड टू रिवाइज व्हेन यू आर डन विद योर सोशियोलॉजी कोर्स. ऐसे मत करना अभी भी बड़ी बड़ी कॉपी है, तुमको वही 400-600 पन्ने रिवाइज करने पड़ रहे हैं. देन दिस कोर्स डजंट मेक एनी सेंस. विद दैट सेड, I like to end this video. I'll see you in the next video. Bye.